आपका 21 जून 2021 का न्यूज एनालिसिस देखेंगे। इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स है। पहला जो आर्टिकल्स है अबाउट द होप एंड प्रॉमिस, सेकेंड आर्टिकल है द comrades and their divergent perspectives, third है plan to put Lakshadweep under the Karnataka High Court, fourth है suffering in silence, fifth है तुम्हारा prelim practice question और लास्ट में सिक्स्थ मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो आर्टिकल है अबाउट द होप एंड प्रॉमिस, इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफिकेंट प्रोविजन, government policy and intervention for development of various sector and issues arising out of this design and implementation। बैकग्राउंड क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि applies to the Jammu and Kashmir order 2019 issue under the article 371 withdraw the special status of the Jammu and Kashmir, extend all provision of the Indian constitution to the Jammu and Kashmir recognition Act 2019, recognitions of the states of Jammu and Kashmir into the Union Territories of Jammu and Kashmir and Union Territories of Ladakh. Union Territories of Jammu and Kashmir to have the assembly like in Delhi and Pondicherry। ठीक है, फिर measures for the development of Jammu and Kashmir क्या है? Accelerated implementations of the Prime Minister and development package announced in 2015 at the cost of 80,068 crore, 63 project road, power, health, education, tourism, agriculture, rehabilitations, schemes for Kashmir migrants, etc. 54 projects are being implemented in Union Territories of Jammu and Kashmir projects by the Union Territory of Ladakh। Status क्या है? Out of 54 projects, 20 projects are completed, substantially completed, reviving the Jammu and Kashmir Infrastructure Development Finance Corporations formed in 2018 to raise loans up to rupees 8,000 crore for completion of nearly 6,000 project। Status क्या है? 800 project worth of 1,000 crore already completed। Central sector schemes for industrial development of Jammu and Kashmir outlay rupees 28,400 crore to boost industrial activities and nurturing existing industries। Nurturing existing industries is an incentive given under the scheme are capital investment incentives 30% in Zone A area and 50% in Zone B area on investment made in plant machineries, construction and building etc. Capital investment subvention 6% for a maximum 7 years on loan amounts up to 500 crores for investment of the plant and machineries। GST linked incentive 300% of eligible value of actual investment made in plant and machineries for 10 years। Working capital investment intensive benefit all the existing unit 5% for the maximum 5 years। तो इससे रिलेटेड एक पेज में क्वेश्चन पूछ सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। पहला है इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर, बिल्कुल सही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। सेकेंड है द provides the capital investment incentive of 30 to 50% different zones on investment made in plant and machineries, बिल्कुल सही है। 30% इन जोन ए एंड 50% इन जोन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बोथ ए एंड बी, सी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है आर्टिकल्स अबाउट द कॉमरेड्स एंड देयर डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव्स। इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है। अंडर इंडिया एंड नेबर रिलेशंस ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया और इट्स अफेक्टिंग द इंडियन इंटरेस्ट, इफेक्ट्स of policies and politics of developed and developing countries on Indian interest। इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में बता रहा है कि रसिया
Russian President Vladimir Putin, both the Indian Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping are responsible enough to solve the ongoing issue between their respective countries. Emphasis on the need to debar any extra regional powers to interfere the process. Statements to be a matter of concern. Critical advocacy of Russia towards the China global vision seems to have left New Delhi over confound. रिजल्ट क्या हुआ कि इमेंस consequence to India. China undermined the Indian global position and reduced India to a state of isolation and importance of global affairs. Quad factors क्या है कि shared objective, free, open and prosperous Indo-Pacific regions. Russian reject the Indo-Pacific in favor of Asian Pacific. Russian reject Indo-Pacific in favor of Asian Pacific. फिर उसके बाद ग्रुप ग्राउंड क्या है कि प्राइमरली अब अमेरिकन इनिशिएटिव्स डिजाइन टू कंटेन both China and Russia. India is clearly about the decision over the Quad. Remark क्या है कि quadrilateral aims at containing Beijing influence in the Indo-Pacific region. स्टेटमेंट क्या है कि reinforcing strengthening the China claim. इंडिया क्या बोल रहा है कि मेंटेन अमेरिकन टाई विथ रसिया, जिसके कारण से कंटिन्यू क्रिटिसिज्म हो रहा है. हाईलाइट द डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव्स बिटवीन द बोथ द कंट्रीज. रसिया एटीट्यूड क्या है कि टच स्टोन ऑफ द रसिया रिलेशंस विद इंडिया. इंडिया मॉस्को डाउन प्लेइंग चाइना डिस्प्ले ऑफ कंसीव मिलिट्री प्रेशर अगेंस्ट द इंडिया. ठीक है. कंक्लूजन क्या हो रहा है कि इनहेरेंट डेंजर permitting Russia views of India-China relations to harden into the permanent attitude. High changes increasingly pro-Beijing Russia to adopt more aggressive blocking of India policy agenda. Reason क्या है कि India is particularly interested in normalizing of relation between the Washington and Moscow. एड क्या है कि इंडिया इज शेयरिंग टाइज अमंग द ग्रेट पावर्स. हेल्प इन डिमिनिशिंग द मॉस्को प्रोपेंसाइट टू क्लोज द कोऑर्डिनेटेड साउथ एशिया पॉलिसीज विद बेजिंग. इससे रिलेटेड मेंस में जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रसिया अनक्रिटिकल एडवोकेसी ऑफ चाइना ग्लोबल विजन्स पोजेस एन इनहेरिटेंस danger in permitting the Russia views of a India-China relation to harden into the permanent attitude decision. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल्स अबाउट द प्लान टू पुट लक्षद्वीप अंडर द कर्नाटका हाई कोर्ट. बैकग्राउंड क्या है? केरला हाई कोर्ट इज द हेड ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द केरला एंड यूनियन टेरिटोरियल एग्जीक्यूटिव. लीगल जुडिशियल ऑफ द यूनियन टेरिटोरी माइट बी शिफ्टेड फ्रॉम केरला हाई कोर्ट टू द कर्नाटका हाई कोर्ट. आर्टिकल 241 जो बताता हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी 241. ठीक है. 124 बताता है तुम्हारा हाई कोर्ट फॉर द सुप्रीम कोर्ट के बारे में. 241 बताता है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी. 214 बताता है हाई कोर्ट फॉर द स्टेट. ठीक है. पार्लियामेंट में बाय लॉ कंस्टिट्यूट हाई कोर्ट फ्रॉम फॉर द यूनियन टेरिटरी डिक्लेयरिंग एनी कोर्ट्स इन द any such territories to be the high court for all purpose. Chapter 5 of the Constitution, Article 214 to 231 deals with the organizations, independent judiciary powers, etc. of the High Court. Article 216, every High Court shall consist of the Chief Justice and such other judges appointed by the President. Article 219 बोलता है, a person appointed to be the judge of the High Court shall take a oath and affirmation before the government. 219 बोलता है
क्वालिफिकेशन क्या है कि इंडियन का सिटीजन होना चाहिए और शुड हैव हेल्ड द जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर 10 years और शुड बी एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट क्या है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम है, ठीक है। जुडिशियल इटसेल्फ इज इन्वॉल्व ensuring that judicial appointments are not made based on a political considerations, securities of tenure for the high court judges, there are not holding the office under the pleasure of the president, ठीक है। restrictions on a practice after being permanent judges, retired permanent judges shall not be plead in any court authority or Indian except the सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट से। अब इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर द हैंड ऑफ द सेल, बिल्कुल सही है। एवरी पर्सन अपॉइंटेड जज ऑफ हाई कोर्ट शैल टेक अ ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं चीफ जस्टिस नहीं, वहाँ के गवर्नर के द्वारा ओथ लेगा। 219 में ये लिखा हुआ, ठीक है। तो करेक्ट पूछा यानी कि ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल्स है अबाउट द वुमेन पर एट्रोसिटी ज़्यादा हो रहा है, सफरिंग वायलेंस, ठीक है। अब न्यूज़ क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ द इंडिया बिटवीन द पीरियड जनवरी टू मई 2021, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है कंस्टिट्यूटेड इन जैन 1992, ठीक है। ये सिक्योरिंग ड्यू राइट्स ऑफ एंटाइटलमेंट, ये सब राइट लीगल प्रोसीजर प्रोवाइड करना, ये सब है। ये कंपोजिशन क्या होता है, चेयरपर्सन होता है, मेंबर सेक्रेटरी होता है एंड द 5 अदर मेंबर होता है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ डाटा दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कि वुमेन पर वायलेंस हुआ है, कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है। तो ये है केरला में सबसे कम वायलेंस हुआ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वायलेंस हुआ। अब इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला स्टेटमेंट, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इनेबल वुमेन टू अचीव इक्वालिटी एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल स्पेयर ऑफ द लाइफ, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर सेकंड बोल रहा है इट सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एंड एट्रोसिटी अगेंस्ट द वुमेन, बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहा है कि द कमीशन कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन, मेंबर, सेक्रेटरी एंड 5 अदर मेंबर, बिल्कुल सही, 5 अदर मेंबर, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, तो बी हो जाएगा 2 और 3। इनकरेक्ट पूछ रहा था, ये इनकरेक्ट है यानी कि 1, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये सारा देख लिया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। और 30-50 एज ऑन पे 30 एंड 50% सब्सिडी देगा, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट देगा। फिर ये देख लिया था जज को हाई कोर्ट का जज प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और उसको तो गवर्नर दिलाता है। फिर ये भी देख लिया था नेशनल कमीशन, उसमें एक चेयरपर्सन होता है, सेक्रेटरी होता है, 5 अदर पर्सन होता है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में फॉर्म हुआ था। अब एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस का क्वेश्चन है रशिया crucially advocate the China global visions pose the inherent danger in the permitting the Russia view of India-China relations to harden into the permanent attitude discussion, ठीक है। ये डिस्कस करिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।